class as well. So basically, as the name indicates, जो grounded theory studies हैं, they are meant to create new theories which are grounded in data. So basically, हुआ ये था, this tradition or this became popular after two sociologists they came up with this approach because they did not agree with the approach कि आपको पहले से आपके पास theoretical orientation होनी चाहिए before you actually conduct a study, right? It's not possible always to have pre-existing theories to base your studies on, especially for fields which are new or fields which are applied when you're talking about new applications or new areas. So it's not possible to always have theories available or pre-existing theories जिनकी ऊपर आप अपनी studies base कर सकें. So they started this approach. इस approach का basically मकसद ये है कि this approach is used to generate or discover a new theory, and that theory is grounded in data which is collected directly from the participants. Behind grounded theories theories that don't come off the shelf, but rather than they are created or generated from data. अच्छा, जो grounded theory है इसमें जो study होती है that is normally around studying the actions, interactions या processes जो हैं, जो जिन लोगों से study की जा रही होती है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा था, जो पार्टिसिपेंट्स ऑन स्टडी के उनके दरमियान जो एक्शंस और इंटरेक्शंस और प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनके ऊपर स्टडी किए जाते हैं नॉर्मली. एंड जो एंड रिजल्ट होता है ग्राउंडेड थ्योरी का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्कीमा. ठीक है, एक थ्योरी जनरेट की जाती है along with a diagram which basically indicates the relationship between these different categories of information that are collected during the study. So in this particular approach is possible or feasible because for many fields it's not possible to have existing theory to base their research on. So the idea that you can discover new theories and concepts and base them on data which is directly collected from the field, this is popular in many fields, and grounded theory की काफी applications and different fields में पाई जाती हैं. तो नॉर्मली ग्राउंडेड थ्योरी का प्रोसेस ये होता है कि इट इज काइंड ऑफ अ zigzag process. Zigzag in the sense that आप जो रिसर्चर हैं they keep on going to the field, collect data, then they come back, analyze that data, develop their theory a bit more, and then go back again into the field to collect more data. So normally they start off with 20 to 30 interviews जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है from a field to collect data. So field is basically could be any site or anywhere where your participants are for your practical purposes. So they go to the field and collect data. So one thing, so जिसमें sampling होती है, sampling, or basically in every research method, in every research there is a process of recruiting participants, and we will look at that process of recruitment and sampling जो है during our next lecture, which is tomorrow, right? कि quantitative और qualitative studies में sampling किस तरह से होती है. But every study basically starts off with first identifying the target population and recruiting that population. So इस particular study में जो recruitment होती है वो theoretically होती है, यानी कि the researcher basically the aim that you're trying to fulfill during your research is to. So once the researchers go into the field, they recruit some participants, collect data, they come back and analyze that data, and in the next round they will go and specifically recruit the type of participants or category of participants जो उनकी theory को complete करने में help करेंगे, right? We are not trying to like recruit a certain number of participants in a certain category, but we are trying to recruit participants which help complete the formulate the theory. So एक और एक terminology that you need to understand about grounded theory is basically a category. Categories जो होती हैं, जो जब आप data collect कर रहे होते हैं तो the data is divided into categories. So basically in a grounded theory study, category is a unit of information. Again, that unit is composed of either events, happenings, instances, processes, actions जो हमने पहले देखे, जो different चीजें आप analyze कर रहे हैं, they form the different categories of.
सो डेटा तब तक कलेक्ट किया जाता है जब तक आपकी कैटेगरी सेचुरेट नहीं हो जाती। जिस सेचुरेशन की टर्म है ये आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में मिलेगी, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा तब तक कलेक्ट किया जाता है जब तक डेटा सेचुरेट नहीं हो जाता, which essentially means के you can, when you go into the field next time, there is new information that you can find about a particular topic or area, and hence you say that the data has started to saturate. And like I discussed earlier as well, statistical significance is not the aim of qualitative studies. It is often exploration, description and explanation. So wahan pe we are not trying to recruit as many people as we're not trying to come up with a sample which is statistically significant, rather we are focusing on the saturation of data. So similarly, grounded theory में भी यही होता है, but the data is collected until these of information are saturated. Okay. Again, so how many passes to the field do you need to make, or how many times the researchers actually need to repeat the process of going back into the field and collect more data? That depends on if this category have become saturated, or if आपकी theory है वो इतनी elaborate हो गई है कि आप data collection बंद कर दें। इस जो डेटा एनालिसिस का मेथड होता है ग्राउंडेड थ्योरी में, उसको कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि आप मुसलसल फील्ड से डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसको वापस लाके एनालाइज कर रहे होते हैं, कंपेयर करते हैं टू मर्जिंग कैटेगरीज। सो बेसिकली आप how you recruit participants, how many times do you repeat the process of data collection, आपके डिपेंड करती हैं on how saturation of the categories of information and the development of the theory that you're working on. So grounded theory की कुछ जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ये हैं कि इसमें जो ये बेसिकली आपको एक तरीका प्रोवाइड करती है फॉर थ्योरीज जनरेट करने के लिए, एंड दैट the method in itself जो होता है वो काफी explicit procedures हैं इसके अंदर। सो बाकी जगहों पर आपको इतने explicit procedure नहीं नजर आएंगे केस स्टडीज में और जब हम एथनोग्राफी के डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी में एक स्पेसिफिक तरीका बताया जाता है और हाउ डू यू एक्चुअली एनालाइज कमिंग फ्रॉम द फील्ड, जब हम अभी आगे चल के देखेंगे भी। अगेन इसका सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली एस्पेक्ट ये है कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जिन एरियाज में पहले से प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज नहीं होती, यहाँ पे नई एप्लीकेशंस के बारे में या नॉवल कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये अप्रोच बहुत यूजफुल है। But there are certain problems associated with grounded theory as well. सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है, लाइक वी डिस्कस किया, आप तब तक फील्ड में जाते रहते हैं, डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं जब तक आपकी कैटेगरी सैचुरेट नहीं हो जाती या आपकी थ्योरी जो है वो एलैबोरेट इनफ नहीं हो जाती। बट द प्रॉब्लम इज कि ये डिसाइड करना जो है दैट कुड बी अ डिफिकल्ट स्टेप इन के व्हेन डू यू actually decide that the data is saturated or the theory is sufficiently developed. This could be a difficult as part of working with grounded theory studies. अगेन अच्छा, कोर जो इसके जो लिमिटेशंस हैं या प्रॉब्लम है ग्राउंडेड थ्योरी का वो ये है कि जिन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन की हमने पहले ही बात की कि जो ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर स्पेसिफिक कुछ कैटेगरीज हैं जो पहले से बनाई गई हैं, मगर हर स्टडी में शायद वो अप्रोप्रिएट ना हो या हर स्टडी के लिए एप्लीकेबल ना। These are some of the issues that are associated with grounded theory. अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि ग्राउंडेड थ्योरी आपको एक मेथड तरीका प्रोवाइड करती है फॉर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा, सो जो दैट यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम द फील्ड। सो उसमें तीन टाइप्स की कोडिंग है जो ग्राउंडेड थ्योरी में, जब डेटा से थ्योरी एस्टैब्लिश करने के लिए तीन तरह की कोडिंग जो है वो यूज की जाती है। सो द फर्स्ट स्टेप इज ओपन कोडिंग,
कोडिंग जो होती है बेसिकली इसका मतलब होता है कि डेटा जो है उसको मेजर कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन में कोड किया जाता है. डू यू गाइस नो व्हाट कोडिंग मींस, कोडिंग ऑफ डेटा? हम टैग्स असाइन कर देते हैं जिसमें हर कीवर्ड के साथ एक टैग असाइन होता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये कीवर्ड जो है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है. यही वही चीज है, थीमेटिक एनालिसिस जिसे कहते हैं शायद. Right, and why do we need to code data? सो वी कैन Analysis फाइंड के आउट कि उसमें एनालिसिस के लिए जो क्या उसमें वो बना रहे हैं, किस तरह से डाटा रिपीट हो रहा है और उसमें पैटर्न्स क्या निकल रहे हैं उसमें. राइट. सो एग्जैक्टली जो डेटा सिमिलर कैटेगरीज में होता है, ये सिमिलर जो डेटा होता है उसको आपने एक जगह इकट्ठा कर देते हैं. दिस इज लाइक द प्रोसेस इज कॉल्ड कोडिंग, एंड इट इज कोडिंग इज डन टू बेसिकली मेक योर एनालिसिस. डेटा जो है वहाँ पे अगेन इट्स in the form of transcriptions or conversations. Coding becomes even more important because it will become very difficult to handle or analyze that kind of data without coding. Coding ऐसे हर जगह ही यूज होती है डेटा एनालिसिस में. सो बेसिकली ग्राउंडेड थ्योरी का फर्स्ट स्टेप ये है कि योर पहले जो आपने कैटेगरीज हमने डिस्कस की ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी टॉक्ड अबाउट, उनको फर्स्ट स्टेप इज टू code your data into those in initial categories. Okay. This is done simply by आप उसको descriptive labels assign कर देते हैं डेटा को. इनिशियली जो लेबल्स क्रिएट किए जाते हैं वो could be according to objects, concepts, processes के बारे में etc. के बारे में होते हैं. आप बेसिकली अगेन फॉर ऑल क्वालिटेटिव स्टडीज जो डेटा एनालिसिस किया जाता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्ट. ट्रांसक्रिप्ट इज बेसिकली verbatim of word to word description of the conversation that is happening between the participant and the researcher. Okay. And over time, again with all qualitative research, coding होता ये है कि some categories of some information begins to repeat itself. Yeah, so basically जो same information होती है आप उनको same codes assign कर देते हैं. मैम एक क्वेश्चन है, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जब हम कोडिंग कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव लेबल्स में, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक मॉडल या रूल्स फॉलो किए जाते हैं, यानी कि जो सबने एक तरह से काम किया हो जिसमें मैपिंग करना इजी हो, या हर बंदा अपने हिसाब से कर लेता है उसको? सॉरी, आप क्या कह रहे हो, मैप करना इजी हो? हाँ जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने डिस्क्रिप्टिव किया है, मतलब उसको कोड किया है, तो मेरे कोड्स और किसी और के कोड्स हो सकता है मैचिंग ना हो, और किसी तीसरे बंदे के लिए पढ़ना इजी ना हो उसको या अंडरस्टैंड करना. मॉडल या स्पेसिफिक मेथड है जो मतलब यूज किया जा सके? ये जो क्वालिटेटिव डेटा की कोडिंग होती है, पहली बात तो ये कि क्वालिटेटिव डेटा के कोई डेटा वेरी करता है बहुत ज्यादा फ्रॉम ऑब्वियसली. क्यों? अगेन आपने वो ओपन एंडेड होता है, एक्सप्लोरेटरी होता है. फ्रॉम स्टडी टू स्टडी डेटा बहुत ज्यादा वेरी कर रहा होता है. सो अनलेस एंड अंटिल यू सिट डाउन एंड स्टार्ट लुकिंग एट द डेटा लाइन बाय लाइन, आपको नहीं पता होता कि क्या कोड बनेंगे. ठीक है. नॉर्मली जो मल्टीपल रिसर्चर्स अक्सर स्टडीज पे काम कर रहे होते हैं, नॉर्मली व्हेन वी डू आवर प्रोजेक्ट मोर देन वन पर्सन इज एक्चुअली कोडिंग द डेटा. सो ये होता है कि सो व्हाट वी डू इज कि बेसिकली अगर आपने 30 इंटरव्यूज किए हैं, सो इंटरव्यूज को ट्रांसक्राइब किया जाता है वर्बेटम वर्ड बाय वर्ड, एंड देन रैंडमली इनिशियली रैंडमली 2-3 ट्रांसक्रिप्ट असाइन किए जाते हैं हर रिसर्चर को. सो हर रिसर्चर आइसोलेशन में या खुद बैठ के पहले एक कोडिंग करता है उस डेटा की. राइट. दे असाइन लेबल्स टू दैट डेटा, जो डिस्क्रिप्टिव लेबल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं. राइट. सो they come up with their own set of codes, and then the other researchers they come up with their own set of codes, and normally क्या होता है कि फिर they sit together and then discuss their codes. Normally होता ही कब कि there is always an overlap because आप लोग obviously essentially एक ही स्टडी का डेटा अगर एनालाइज हो रहा है तो कोई ना कोई ओवरलैप आ रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन में, उसकी वजह से कोडिंग कोड्स में भी ओवरलैप्स होते हैं. बट देन अगेन देयर इज ऑलवेज अ पोर्शन ऑफ कोड्स जो दोनों रिसर्चर्स के पास डिफरेंट आ रहा होता है, बिकॉज अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरव्यू एक इंटरव्यू में आई होगी बट दूसरे इंटरव्यू में वो चीज नहीं आई होगी. राइट. क्वालिटेटिव में अक्सर ऐसा होता है.
सो इवेंचुअली होता ये है कि यू कंबाइन बोथ ऑफ दोज लिस्ट एंड जो चीज रिपीट हो रही होती है यू असाइन अ सिंगल टू देम. सो होता ये है यू हैव टू डिसाइड एज अ टीम कि इस पर्टिकुलर चीज को क्या नाम दिया जाएगा एंड यू डिसाइड दैट कोड एज द फाइनल कोड एंड देन यू मूव ऑन. इसी तरह सो ये जो चीज ओवरलैप करनी थी उनके लिए यू एग्री ऑन वन सिंगल code and then you simply combine the codes which weren't overlapping and you continue this process until again आपके जो codes हैं वो सारे cover नहीं हो जाते हैं या आपको next time when you code a transcript you see कि कोई नई information नहीं आ रही, there is no new code that we can come up with, so you start actually coding your data in a software. So उसके बाद हम उसको list को software में जाके पूरे codes की list establish करते हैं and then you import all your data and start assigning जो line by line या आपके paragraph by paragraph जो है डिपेंडिंग ऑन के कन्वर्सेशन किस तरह से हो रही है आप उसको कोड्स असाइन करना शुरू कर देते हैं. सो आप जो कह रहे हो ना समझ नहीं आ रही, समझ तब नहीं आती जब दो लोगों ने आइसोलेशन में बैठ के बनाया होता है. हो सकता है उन दोनों को समझ ना आ रही हो, बट बिफोर यू एक्चुअली मूव ऑन टू द फुल स्केल कोडिंग ऑफ योर डेटा इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट यू हैव टू sit together and decide on the common term जो name for each code. ठीक है, ताकि आप अगर अलग अलग भी बैठ के काम कर रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं तो आपकी कोडिंग की एक्चुअली सेम हो. सो यही प्रोसेस फॉलो होता है इसके दिस इज एज स्टैंडर्ड एज इट गेट्स. आई थिंक सो बेसिकली हम ओपन कोडिंग की बात कर रहे थे. सो बेसिकली ओपन कोडिंग में क्या हो रहा है कि आपने इनिशियली जो आपकी डेटा क्वालिटेटिव डेटा था उसको आपने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और डिस्क्रिप्टिव लेबल्स असाइन कर दिए हैं, राइट. देन आफ्टर असाइनिंग ओपन कोडिंग जो है नेक्स्ट चीज होती है एक्सियल कोडिंग. सो बेसिकली एक्सियल कोडिंग में ये होता है कि जो रिसर्चर हैं दे आइडेंटिफाई कि वो कौन सी एक ओपन कोडिंग की कैटेगरी है जिस कॉल्ड द कोर फिनोमेना जिस पे उन्होंने फोकस करना है. वो कोर फिनोमेना के राउंड जो है बाकी कैटेगरी जो है कोड्स की वो एस्टैब्लिश करते हैं. सो बेसिकली एक कैटेगरी होती है कॉजल कंडीशंस यानी जो कि कोर फिनोमेना को इन्फ्लुएंस करी होती हैं. स्ट्रेटजीज या वो होती हैं जो बेसिकली एक्शंस या रिएक्शंस जो होते हैं जो लोगों के टू द कोर फिनोमेना. ठीक है, सो एक्शंस व्हिच आर टेकन इन रिस्पांस टू द कोर फिनोमेना वो आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं. एंड देन कॉन्टेक्चुअल एंड इंटरवीनिंग कंडीशंस मींस बेसिकली कि सिचुएशनल फैक्टर जो भी कंडीशंस हैं ये फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं स्ट्रेटजीज को. बेसिकली उन स्ट्रेटजीज की जो भी स्ट्रेटजीज लोग ने अडॉप्ट की थी उनके रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस क्या निकला. सो ये जो एक्सियल कोडिंग बेसिकली आपके जो ओपन कोड्स थे उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड कर देती. एंड नॉर्मली जो इसका रिजल्ट होता है वो एक डायग्राम की फॉर्म में होता है. सो बेसिकली डायग्राम जो है आपकी जो डिफरेंट हमने कोडिंग की कैटेगरी डिस्कस की और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप थी ये शो करती है. टॉकिंग अबाउट कि आपके जो ग्राउंडेड थ्योरी का रिजल्ट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एनालिटिकल स्कीमा और अ डायग्राम व्हिच इंडिकेट्स द relationship between the different categories of information. तो बेसिकली इसका रिजल्ट ये होता है जो द ग्राउंडेड थ्योरी का जो प्रोसेस है स्टडी के एंड में सब्सटेंटिव लेवल थ्योरी एक जनरेट हो जाती है व्हिच एसेंशियली मींस थ्योरी व्हिच कैन बी अप्लाइड टू ग्रुप और अ प्रॉब्लम और इशू विद सिमिलर सेटिंग्स. थ्योरी का मतलब एग्जिस्टिंग थ्योरी इसका मकसद नहीं होता टेस्ट करना, इसका मकसद अगेन इट्स टू जनरेट और क्रिएट न्यू थ्योरीज.
Okay, moving on. Next is we are going to discuss ethnographic studies. Ethnography का नाम सुना हुआ? Have you heard of ethnography before? Okay. So basically ये ethnographic studies होती हैं. Normally इसकी roots हैं anthropology में. Anthropologists are people or scientists who study human beings and तो anthropologists जो है वो ethnography conduct करते हैं, and they are the group of researchers who are appropriately trained to conduct ethnographic studies, जो सही traditional ethnographic study होती थी. सो बेसिकली एथनोग्राफिक स्टडी का मकसद ये होता है कि आपने किसी भी ग्रुप के सोशल ग्रुप के जो उसका जो कल्चर है या सोशल स्ट्रक्चर है वो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड एथनोग्राफर्स जो हैं दे हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी. एंड what normally ethnographers do is they go and spend extended periods of time within these communities or these social groups that they are at. So basically the extended period of time जो traditional ethnographies में होते थे वो 6 महीने से साल तक जो researchers थे वो जाके specific tribes के साथ इन villages में और इन जगहों पर जाके रहते हैं. उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, उनके घरों में रहते हैं as guests. और so basically they become completely immersed in their culture for conducting these ethnographic studies. And normally I think it term काफी frequently used होती है, but often I've seen qualitative studies को जो ethnography के कहा जाता है. You will find a lot of paper in computer sciences, especially HCA में भी होंगे, लेकिन HCA के बाहर भी there are papers where researchers have gone and studied different groups of people. For instance, research on FAT-ML, and what he has done is like he has conducted 50 data scientists or ML engineers and to understand how do they define a problem, because that particular paper deals with how used when you're actually defining a problem, क्योंकि human beings are biased inherently, and when human beings are defining a problem उसमें bias introduce हो जाता है. और कैसे होता है? Because आप problem जो define करेंगे data उसी को उसको answer करने के लिए use किया जाएगा. When we talked about these qualitative research methods, they are not just specific to software engineering, or they're used in other areas as well. And when you talk about ethnography, so it's not just so traditionally the ethnography is social or cultural structures समझने के लिए होती थी, but they're also conducted to understand other groups of people, right? जैसे मैं आपकी example दी. So ethnography के लिए ज़रूरी होता था कि traditionally के और to some extent अभी भी ये ज़रूरी है कि जो researcher है that is accepted as a member of the group जिसके ऊपर study की जा रही है. मैंने आपको differential का भी बताया था कि जितना ये differential जो difference होता है वो कम होता है between the researcher and the people that they are studying, उतना बेहतर होता है. So इसका central जो the thing that we need to focus on is like people are studied, ये जो काफी ethnography traditionally they are conducted over a long period of time, and they're conducted in peoples that are being studied in their natural environment. So again जैसे हमने grounded theory का देखा था कि वहाँ पे उनकी grounded theory is used where you want to, जहाँ पे pre-existing theories नहीं होती और आप किसी novel चीज concept पे काम कर रहे हो, तो
working on a new application, so you're trying to generate theory from data. इसी तरह जो ethnographies हैं, they are conducted specially for cultures or groups जिनके बारे में either there is little known or there are a lot of misconceptions or prejudices about that particular culture or group. So that is where ethnographies come in. The goal of ethnography is to understand the culture as described by the participants themselves, like what is going on. That is, if अगर आप ये approach लेंगे, तभी आप जो misconceptions हैं या prejudices हैं उनको remove कर सकते हैं. So you're trying to generate data in ethnography which is जो external biases से और जो presumptions हैं उनसे free हो. So हमने ग्राउंडेड थ्योरी में देखा था कि ग्राउंडेड थ्योरी में इंटरव्यूज यूज होते हैं, पार्टिसिपेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं जो उनकी डिफरेंट इंटरलिंकेजेस होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, उनको पार्टिसिपेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. एथनोग्राफीज में जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज की जाती है. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये कि रिसर्चर जो है वो क्लोजली अपने आप को बेसिकली दे इमर्स देमसेल्व्स इन दैट पर्टिकुलर कल्चर, दे स्पेंड टाइम विद देम एंड दे स्टडी दैट कल्चर इन डिटेल एंड टेक एक्सटेंसिव नोट्स. And they take notes about like the day-to-day lives of people being studied, what they're doing, how they're interacting with each other, etc. So इसका फोकस जो है कि उसको जो फोकस होता है ethnography स्टडी का वो एक ग्रुप होता है. इट्स लाइक जैसे केस स्टडीज में हमने देखा था, इट्स एन इंडिविजुअल केस, एंड इंडिविजुअल केस में इट कुड बी एन इंडिविजुअल, इट कुड बी अ ग्रुप, इट कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे जो है ethnography का फोकस है वो एक ग्रुप होता है जो सेम कल्चर को शेयर कर रहा है, हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं. Important to be effectively understand any particular group. It's important to understand the world in their terms or see it from their eyes. इसलिए you have to, so that is when you will be able to get rid of any assumptions or prejudices about that particular group. Ethnographies वैसे qualitative research हर जगह ही applicable, बल्कि I think so in any social science related research method, बेशक वो fixed design हो या quantitative studies हो या qualitative studies हो, जहाँ पे आपका interaction इंसानों से हो रहा है. So any particular research जिसमें आपका human interaction involved होता है, उसमें ethics जो है वो बहुत important होते हैं. एंड सो जो इस क्वालिटेटिव स्टडीज होती हैं और स्पेशली ethnography में देख रहे हैं कि इसकी डेप्थ ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द पार्टिसिपेंट्स और जो ग्रुप जिसको स्टडी किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू ग्राउंडेड थ्योरी और केस स्टडीज जहाँ पे आप इंटरव्यूज कर रहे थे. सो इंटरव्यूज की ड्यूरेशन जो होती है वो डेफिनेटली कम होती है, whereas in ethnography you're talking about spending extended period of time like 6 months to a year, and this is specifically for anthropology. मैंने किसी को कंप्यूटर साइंस में इतना ज़्यादा लंबा टाइम गुजारते हुए देखा रिसर्च, बट स्टिल involvement or the time and the depth of involvement increases, उतना ज़्यादा these ethical and जो moral issue concerns हैं वो important होते जाते हैं. In any case, if you want your research to be published and that research or the involves data collection from human beings or participants, so वहाँ पर आपको अपने एक IRB approval की ज़रूरत होती है. So you cannot publish any research which involves data collection from people unless you have gotten it approved from an institutional review board. So institutional review board का काम ये होता है कि they look at all your research approach, the information that you're collecting, how that information will be handled and used in a way that it does not cause any kind of harm to any of the participants. It does not reveal their true identities, यानी उनकी anonymize किया जाएगा डेटा, इसको इस तरह से सेव किया जाएगा सिवाय रिसर्चर किसी को एक्सेस नहीं होगा, anonymize करके सेव किया जाएगा और यूज किया जाएगा. ये सारी चीजें जो होती हैं जो मॉरल और एथिकल एस्पेक्ट्स होते हैं रिसर्च के, जिनको मेक श्योर करने के लिए इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स के थ्रू गुजर के जाती हैं. So even if you do conduct a research, you will not be able to
publish it in a peer-reviewed venue unless you have an IRB approval. And normally, it's important to conduct your IRB approvals before you actually go into the field to carry out your research. And every university has an IRB. ITU के अंदर भी है if you want. So if you want to work on any project that you want to publish, so you should go through IRB before you go to the field. सो कुछ चैलेंजेस जो है या डिफिकल्टी एस्पेक्ट्स जो है एथनोग्राफी के वो यही हैं कि अगेन एथनोग्राफी कंडक्ट करने के लिए आपको ठीक ठाक किस्म की एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर बेस्ट ट्रेन्ड फॉर इट. There are some specialist concepts used when talking about social cultural systems, so you also need to have an ना सिर्फ आपको जो एथनोग्राफी कंडक्ट करने का तरीका है उस पर पूरा हासिल होना चाहिए, बट ऑल्सो जो उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए. इनका जो डेटा कलेक्शन टाइम है वो काफ़ी लंबा होता है. एंड जो ट्रेडिशनल एथनोग्राफी एंथ्रोपोलॉजी वाले कंडक्ट करते हैं उसमें तो इट एक्सटेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट अगेन कंप्यूटर साइंस में देयर आर लॉट शॉर्टर ड्यूरेशंस ऑफ स्टडीज दैट आर बीइंग कंडक्टेड. अगेन जो आपका एक देयर इज अ ऑब्वियसली अगर आप उसका टाइम कम करें तो आप जो डेप्थ में आप जा रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएगी. बट अगेन लुकिंग एट द पर्टिकुलर पर्पस ऑफ योर रिसर्च यू कैन डू दैट. एक जो लिमिटेशन मैंने डिस्कस की हुई है कि जैसे एथनोग्राफी रिपोर्ट कैसे होती है. सो ये जितने अपने ट्रेडिशंस पढ़े हैं, केस स्टडीज, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफीज, ये सब रिपोर्ट करने का एक तरीका होता है. हर एक का अपना एक स्टाइल है रिपोर्ट करने का. सो डेटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स जो मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव में, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये सारे डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं. डेटा एनालिसिस आपने देखा था ग्राउंडेड थ्योरी में काफी द प्रोसेस इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. बंद दिया है क्वालिटेटिव को. So what the point I was discussing was what each of these approaches ये स्लाइड जो है दिस इज इंडिकेटिंग के जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है रिपोर्ट करने का. एथनोग्राफी के बारे में मैंने कहा एक लिमिटेशन जो टिपिकल एथनोग्राफी की वही होती है कि जिसका स्टाइल होता है रिपोर्ट करने का. इट माइट नॉट बी जो नैरेटिव होता है, नैरेटिव स्टाइल का होता है. इट माइट नॉट बी people who do not have a social science background. So this particular slide, this is showing के जो आपका structure क्या होता है typical study का for all three types of traditions that we discussed. There are some other aspects. Compare all three of them. Again जो unit of analysis होता है तीनों में वो different होता है. Case study में हमने देखा था कि it's a case. Case could be an individual, an organization, or a group of or number of individuals. Okay. Ethnography में we are studying a group जो कि similar culture को share करता है. In grounded theory, we are studying processes, actions, or interactions among individuals. So basically, in grounded theory, when you're talking to individuals, you're trying to understand the different processes and interactions between those individuals through qualitative interviews, and you are relying on how the participants are describing these categories of information for you. Whereas in an ethnography, a participant observation पे ज़्यादा rely कर रहे हैं, and you're studying a group which shares the same culture, and you're trying to understand the shared culture का pattern क्या within that group. Right? And case study में हमने देखा था कि case study में जो multiple data collection के methods use हो सकते हैं. It could be observations, it could be interviews, it could be surveys, it could be quantitative data as well.
ये हम डिस्कस कर चुके हैं. सो डेटा कलेक्शन, अगेन इंटरव्यूज इन ग्राउंडेड थ्योरी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस प्राइमरीली यूज होती हैं इन एथनोग्राफी, बट अदर और भी डेटा कलेक्शन सोर्सेज यूज हो सकते हैं. अब केस स्टडीज में मल्टीपल सोर्सेज यूज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी यूज हो सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, एनीथिंग. अब डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजीज में देख सकते हैं अगेन कि ग्राउंडेड थ्योरी का जो एनालिसिस का तरीका है वो सबसे ज़्यादा वेल डिफाइंड और प्रोसीजरल है. बाकी जो एथनोग्राफी और केस स्टडीज हैं उसमें नॉर्मली वही तरीका यूज होता है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का जो हर जगह यूज होता है, विच इज एसेंशियली अगेन इट इज ऑल्सो वो वही तरीका ऑफ ग्रुपिंग, फर्स्ट ट्रांसक्राइबिंग द इंफॉर्मेशन एंड ग्रुपिंग सिमिलर इंफॉर्मेशन इनटू अंडर वन कोड और कैटेगरीज ऑफ कोड, analyzing it. जो रिजल्ट कंक्लूजन अगेन एंड प्रोडक्ट क्या निकलती है इन तीनों चीज़ों की वो भी स्लाइटली डिफरेंट है. हमने ग्राउंडेड थ्योरी में देखा था कि हमारे पास एक डायग्राम की फॉर्म में एक स्कीमा आ जाता है विच इज एक्चुअली connecting the different processes and categories of information, right? Ethnography में basically it's a very detailed description of how group is culture, जो group है जिससे मेरे culture को share कर रहा था, how that group is working. Whereas a case study is जो भी आपका case था, so basically whatever आपकी case individual organization थी या there were few individuals, उनकी जो detailed analysis होता है वो आपकी case study होती है, right? Okay. That's about it for today. एक चीज अच्छा ethnography में एक चीज I just wanted to add. So there are two types of ethnographies. एक होती critical ethnography and एक होती realist ethnography. So basically आपने critical ethnography होती है उसमें basically trying to focus on is they're focusing on the marginalized groups and how and addressing concerns about power and control, like आपके issues होते हैं inequality के, inequity के, victimization के, वो study करते हैं. Whereas in realist ethnography so basically इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि जो researcher है third person है उसका point of view of क्या है about the subject of study.